Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the language study. This question has been asked in your board exam for 10 marks. So how can we complete it? How can I solve it in the board exam? Which types of question can be asked in the board exam? So it is depend on the passage or lessons. Every passage, every lessons, I teach you. I will teach you about the language study after finish the lesson. Okay. So let us start the video, and I hope that you try to understand this question and try to solve it own self. Don't copy from anywhere. Try to solve it own self. If you have any doubt, you can ask me personally, or you can ask your question in your WhatsApp. Okay. So let us start the video. See here, language study. This question has been asked in your board exam for 10 marks, and this question I shall teach you after finishing the every lessons. So you make a 200-page notebook and write down these things, these questions, lesson wise on your notebook. Language study and appreciation of the poem. Its activities, lesson activities, poems activities, its word meaning, all things, all these activities, all these questions you have to write down in your notebook. Okay. So first question, question number 1A, do as directed. In this part, 6 questions has been asked, and you have attend only 4. Now you have to attend only 4. Only 4. No. Only 4. Now out of 6 क्वेश्चन, ठीक ना, 6 क्वेश्चन में से आपको केवल कितना करना है? 4 करना, कोई भी 4, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स. तो हियर some letters has been given like that, and some letter is missing in this word. So figure out, find out this word from your textbook and fill up with the correct letters. Suppose I told you only one, CON ... last letter T. ये क्या है? कांस्टेंट ना, कांस्टेंट, ठीक ना. तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा जाएगा STAN, कांस्टेंट है. इसी तरह से ये वर्ड को फाइंड आउट करो अपने टेक्स्ट बुक्स में से. ये वर्ड आप फाइंड आउट करो और ये इसको देखो ये कहाँ पे है, और इसको क्या करो, फिलअप करो. ओके. Next one, put the words in alphabetical order. Alphabetical order, I shall have taught you about this question. What is alphabetical? Alphabetical: A, B, C, D, E, F, G, H, like that. It is your alphabetical order. Now, first letter is
A, second B, third C, D, E, in this way. ठीक है, तो we arrange these words like that. First you consider about your alphabetical letters and its sequence, and after that you arrange these words like that. H, A, I, C. अब यहाँ पे आप ऐसा भी आप लिख सकते हो अपने थोड़ा सा माइंड के लिए, H, A, I, C. अब इसको अरेंज कर दो इसी के अनुसार. अब अल्फाबेटिकल में पहला लेटर क्या A आएगा, तो ये इसको हम पहले लिखेंगे, फिर C आएगा तो इसको लिखेंगे, फिर अब इसके बाद कौन सा आएगा, H आएगा तो I आएगा, तो H आता है तो फिर I आता है. ठीक ना. तो इस तरह से क्या होगा, अरेंज हो जाएगा आपका. तो ये अल्फाबेटिकल हो गया. यहाँ पे देखो लेटर्स डिफरेंट हैं, सभी वर्ड के जो स्टार्टिंग लेटर है वो डिफरेंट है. लेकिन यहाँ आप सेकंड में देखिए, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग लेटर सबका सेम है. तो हम क्या करते हैं कि सेकंड लेटर की तरफ जाते हैं. यहाँ पे T है, यहाँ पे G है, यहाँ पे D है और यहाँ पे B है. तो सेकंड लेटर को कंसीडर करते हैं. तो सेकंड लेटर को जब कंसीडर करोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, और यहाँ पे D और यहाँ पे B. अब इसी के अनुसार आप इसको अरेंज कर दो. पहले B आएगा, A से है ही नहीं है, तो सेकंड लेटर B है, फिर इसके बाद D है, फिर इसके बाद G है और लास्ट में D है. ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सबका जो फर्स्ट लेटर है सबका क्या है, कॉमन है. तो हम सेकंड लेटर पे जाते हैं. अगर सेकंड लेटर भी कॉमन है तो थर्ड लेटर पे जाएंगे. इस तरह से इससे अल्फाबेटिकल आर्डर आपको करना है. तो अल्फाबेटिकल आर्डर करिए. फिर देखो पंक्चुएट द फॉलोइंग. ये भी आपको इजी है. इसमें आपको क्या करना, पंक्चुएट करना है कि कहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, कहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे. ओके, तो ये केवल आपको करना है. यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे द दिया है, तो हमें क्या यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे इसको कैपिटल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. जब आपको इसको करोगे तो ये आपको एक टी क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप करेगा. तो ये क्या है, आपका पंक्चुएशन है. तो पंक्चुएशन है, इसे पंक्चुएट करना है आपको. फिर देखो मेक 4 वर्ड्स minimum of 3 letters each using the letters in the word in counter. ये जो वर्ड आपको दिया गया है, consider about this word. This word has the letters, some letters. Using these letters, you make 4 words, meaningful words, and which word has minimum 3 letters. ठीक है. डोंट यूज 2 letters word in this question. You can use 3 letters word in this question. 4 it can be possible, but 2 letters cannot be accepted in this question. Okay, तो इनकाउंटर. अब यहाँ पे देखो ENCOUNTER. तो इससे हमें कितना 4 लेटर बनाना है. ठीक है, तो क्या हो गया, आप इसको भी कह सकते हो काउंटर या नेट 10 3 लेटर्स. ठीक है. अगर हमने इसका 2 लेटर किया तो नहीं होगा. अब ये इंटर भी कर सकते हो. ठीक है, इंटर, या आपको 10 हो गया, नेट हो गया, फिर देखो COT कोट हो गया. इस तरह से आपको कितने 4 वर्ड बनाने हैं, और मीनिंगफुल वर्ड जिसकी मीनिंग सो. ऐसा कुछ भी नहीं लिख देने का. जैसे अभी हम ऐसा लिखिए ENC, ये मैंने लिख दिया ऐसा. आप बोलोगे कि ये तो 3 लेटर्स है, बट दिस वर्ड हैज नो मीनिंग, इसे कोई मीनिंग्स नहीं. तो ये क्या हुआ, आपका रॉन्ग हो जाएगा. मतलब वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, और कम से कम उसमें 3 लेटर्स होने चाहिए. ठीक है. सेकेंड, 5th वन, राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल. यहाँ पे ये नाउन दिया है, और ये वर्ड जो यहाँ पे फिलअप किया गया है
तो दिस वर्ड डिस्क्राइब अबाउट दिस नाउन, तो इट मीन्स दिस वर्ड इज अ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव. Now, adjective is a word which modify noun or pronoun. So it is an adjective and this word modify the tree. ठीक ना? This word describes about the tree. So we should fill up these blank empty place with the adjective. For example, tree. You can write the small, green. ठीक है? In this way you can fill up. Now, those words you can use here which modify this noun. ना, मतलब आप वही केवल एडजेक्टिव यहाँ पे भरोगे जो इस नाम की क्या करें विशेषता बताए, इसके बारे में क्या करें. ओके, लास्ट वन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब. ऑलवेज पे अटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड लाइक दैट, कंप्लीट द वर्ड चेन. इतना अगर हमने यहां से कट कर लिया, तो यू कैन यूज एनी वर्ड हियर, एनी मीनिंगफुल वर्ड हियर, बट इफ आई एड दिस वर्ड ऑफ वर्ब, यू कैन यूज ओनली वर्ब. यू कांट यूज एनी अदर वर्ड सच एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. यू कांट यूज दिस वर्ड to fill up these empty place. ठीक ना? You first pay attention about the question and then do the answer. Okay? So God, it is T. Word chain. Last letter is T. We make the noun with verb with this letter. ना, गॉड तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक. ठीक है, तो टेक हो गया, टी से हमने स्टार्ट किया, टेक हो गया, वर्ब है. अब यहाँ पे क्या आ गया, ई. तो एंड ईट, फिर टी आ गया. अभी टी से और दूसरा क्या हो जाएगा, हमने टेक लिखा और टी से दूसरा टीयर, फाड़ना, टीयर, टीच ना, टीच भी आप लिख सकते हो, TEACH. Only what things you can write here, only the verb, verbs first form. Don't, अभी तो हमने लिखा यहाँ पे टी से लिखा, या यहाँ पे टी से तो हमने टू कर दिया, या तो सेकेंड फॉर्म यूज करो या तो आर फर्स्ट फॉर्म यूज करो. ठीक है, लेकिन ईडी फॉर्म मत यूज करो, क्योंकि जैसे अभी ईडी फॉर्म क्यों यहाँ पे है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हैव, अब यहाँ पे डी आ गया ना. फिर हमने दूसरा डी से किया, दूसरा शब्द कोई भी आपको लिखना हो, तो ये जो आप लोगे ये तो ईडी फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये आपको ईडी फॉर्म यूज नहीं करना है, आप केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करो इसमें, इसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, फिर यहाँ पे एच आ गया, एच से बहुत सारे आपके होते हैं, हेल्प हो गया, हियर हो गया, होल्ड हो गया, बहुत सारे वर्ड हैं ना. तो इस तरह से आप इसे जो है कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, फिर इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज स्टडी एंड इट इज द सेकेंड पार्ट. 2 एंड इट इज 8. और अटेम्प्ट करना है तो ये 2 पार्ट का रहेगा. और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन. तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज टू कैच होल्ड. नाउ इट इज द फ्रेज. एंड सेकंड वन, एड अ क्लास टू एक्सपेंड द सेंटेंस. इट इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस. To complete this sentence using the only class, you can't use any other things. ठीक ना, to complete this sentence, you use here only the class.
And what is class? I taught you in the last class, in the 9th class, what is class and what is its parts, how can we use anywhere a class, how can we expand the sentence by using the class. Okay? तो क्लास का यूज करना हुआ तो हमें क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे आप है कॉस होल्ड पकड़ने से है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका सेकेंड फॉर्म भी आप लिख सकते हो। जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं कि अब हमने इसको क्या किया, सेकेंड भी लिख दिया, कॉट होल्ड, ठीक ना, अ बर्ड फ्रॉम my garden. Okay, he caught hold a bird from my garden. ये हो गया, मैंने यूज कर दिया एक सेंटेंस में। आप इसको आप लिख सकते हो, या दूसरा है यहाँ पे लिखा गया है add a clause to expand the sentence। अब इसको मुझे एक्सपेंड करना है। अब हम एडजेक्टिव क्लास का यूज कर सकते हैं, एडवर्ब क्लास का, नाउन क्लास का, ठीक है। देखो पहले मैं एडजेक्टिव लिखता हूं, द राइटर हु was saving the baby langur was a kind man। ये क्या हो गया आपका, मैंने यूज कर दिया फ्रेज का। अब देखो ये एडजेक्टिव क्लास में होगा, ये देखो ये इतना, ये जो है ये क्या है आपका क्लॉज है, इसी को हम बोलते हैं क्लॉज। अब अगर इसमें दो भाग हो गए, द राइटर वॉज अ काइंड मैन, मतलब जो लेखक था वो दयालु व्यक्ति था, एक दयालु व्यक्ति था ना। अब कौन सा राइटर की बात कर रहे हैं, वो राइटर जो क्या कर रहा है कि एक बेबी लंगूर को बचा रहा था। जो बेबी लंगूर को बहुत सारे लोग वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई थी, लेकिन उसको जो मेल था, जो मेल लंगूर था, जो एकदम डोमिनेंट था, पावरफुल था, उसको मारने की इंटेंशन से, उसको एकदम खत्म करने की इंटेंशन से चारों तरफ उसके बॉडी में बाइट कर रहा था, काट रहा था, ठीक है ना। तो उसको बचाया कौन, राइटर ने बचाया। तो ये जो है ये इतना पार्ट किसकी विशेषता बतला रहे हैं, राइटर की। फिर इसे हम क्या हो गया, इसे हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है, समझे। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लास। अब इसी में हम ऐसा भी नाउन क्लास अगर हमें यूज करना हुआ तो हम इसको आपको बताए थे कि नाउन क्लास यूज करना हुआ तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, द राइटर सेड ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो, दैट लगा। अब दैट लगा के आप टेक्स्ट बुक का कोई भी स्टेटमेंट जो राइटर ने बोला है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका नाउन क्लास हो गया, जो राइटर बोला है, ठीक है। कि आई कांट, दैट I can't forget this ठीक ना, I can't forget this incident, ठीक है ना। अभी हो गया, ये उसने कहा है कि मैं इस घटना को भूल नहीं सकता, ठीक है। तो ये वो राइटर ने कहा है, ये आपका नाउन क्लास हो गया। मैंने क्लास का यूज करके दोनों का काम बताया आपको। तो इस तरह से हम इस वाक्य को एक्सपेंड करते रह सकते हैं। फिर देखो सेकंड दिया है, अब इन दोनों में से पहला है ना, यहाँ पे देखो ये दिया आर दिया, तो यू कैन सॉल्व दिस आर दिस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट एड प्रीफिक्स आर सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, it is used to make the new word. Sometimes we use it to
मेक द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। जैसे यहाँ पे फोल्ड है, इट्स अपोजिट वर्ड, व्हाट इज इट्स अपोजिट वर्ड? वी ऐड हियर prefix what? Unfold. It is the opposite of fold. ठीक ना? It is a new word, unfold. ठीक है? And here make a noun. Creation. Now, तो ये क्या हो गया? इस तरह से आपको जोड़ना है। सफिक्स मतलब जो वर्ड के लास्ट में जुड़े, और प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले जोड़ा जाए। तो यूएन हमने जोड़ दिया तो अनफोल्ड हो गया, अपोजिट इसका हो गया, और इसका हमने नाउन बना दिया, क्या हो गया? क्रिएशन ना। तो ये आपका क्या हो गया? यही करना है आपको, चाहे आप इसे करिए या दूसरा दिया है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे क्या दिया है? मर्सी। ठीक है, मर्सी, ये मर्सी मतलब दया या वायलेंट है। अब इसको मुझे एक वाक्य में यूज करना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डोंट किल एनीवन मर्सीलेसली। डोंट किल या डोंट बीट एनीवन मर्सीलेसली। वायलेंट, इट इज नॉट अ वायलेंट चाइल्ड। ठीक ना? इट इज नॉट अ वायलेंट चाइल्ड। यह मतलब क्या है कि एक हिंसात्मक आक्रमण नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ वायलेंट चाइल्ड। ठीक है? इन दिस वे इट इज योर फर्स्ट सेट, और इट इज द बेस्ड अपॉन योर सेकेंड 1.2, and the lesson's name is an encounter of assassin kinds. ठीक है? Set 2. I make the next step for you. Complete the words by using correct letters. Same way you can solve it. And second, put the words in alphabetical order. I tell you about the alphabetical order. What is alphabetical? ठीक है? Punctuation. See here. Some sentence has been given without any punctuation. To punctuate the sentence carefully, whereas we can use comma and capital letters, semicolons. These are the punctuation. Punctuate these questions. And next one, make 4 words minimum 3 letters is using the letters in the word communication. Communications में आपको इन सारे वर्ड्स जो लेटर्स इसमें हैं, इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उन लेटरों का यूज करके आपको कम से कम 3 लेटर का 4 वर्ड बनाना है। 3 कम से कम होना चाहिए, उसके ऊपर चाहे जो भी रहेगा वो एक्सेप्टेड है, लेकिन उससे कम अगर आपने 2 लेटर का कोई वर्ड इसमें लिख दिया तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है? अब देखो, इसमें आपको 4 लेटर बनाने हैं। फिर यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर लेसन, व्हाट डू यू फाइंड आउट अबाउट द राइटर? व्हाट डू यू नो अबाउट द राइटर? व्हाट टाइप्स ऑफ मैन इज? ठीक है? तो उसके बारे में आपको लिखना है, एडजेक्टिव का यूज करना है। यहाँ पे काइंड मैंने एक आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया है, और क्या क्या उसमें आपको लगता है कि ये राइटर इस तरह का रहा होगा, इस तरह का है, उसके एक्टिविटीज से आपको क्या लगता है उसको आप फिलअप करो। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। मैंने आपको बोला ना कि ये चेन के बाद जो ये वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सोचना है कि क्या होना चाहिए। अब नाउन्स मतलब ये जितने भी आप यहाँ पे 4 वर्ड लिखोगे वे क्या होने चाहिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन ही होने चाहिए। अगर इसमें आपने वर्ब या एडजेक्टिव भर दिया तो आपका क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा, उसमें केवल नाउन होना चाहिए। ओके? फिर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। दिस फ्रेज हैज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, गॉट द बेटर ऑफ। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे स्टार्टिंग लाइन में है ये गेट द, वहाँ पे क्या लिखा है? इसका पास्ट फॉर्म है गॉट द बेटर ऑफ, और इसका मतलब होता है डिफीटेड, मतलब हराना। तो इसका यूज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, जैसे मैंने अभी आपको बना के यहाँ पे दिखाया। फिर दूसरा देखो, एड अ क्लॉज टू एक्सप्लेन
expand the sentence. The male langur. देखो अभी है यहाँ पे मेल लंगूर. अब उसको मान लो मुझे एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव हम कैसे बनाएंगे? चलो मैं बोलता हूँ आपको एडजेक्टिव क्लास बनाना है. तो एडजेक्टिव क्लास जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे इस लंगूर की विशेषता जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ी उसकी विशेषता के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस बनाएंगे. अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, द मेल लंगूर हु इज बाइटिंग. हु इज लगाइए या वाज लगाइए. हु वॉज बाइटिंग मर्सीलेसली वॉज पावरफुल. बन गया सेंटेंस. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, add prefix or suffix to make the new words. Now, expect and help. Unexpected, unexpected कर दीजिए, helpless हो गया. फिर make meaningful sentence using any one of the following. Excite या life. ठीक ना? जैसे life is, the life is like a dream. एक सेंटेंस हो गया आपका. उसी तरह से excite का लिखिए. ठीक ना? So in this way, this video is finished here, and I hope that you will have understood it very well. If you any query, if you don't understand it, you can ask me, and hope that you will complete this question and write down in your notebook. First, you make 200 page notebook and write down all the activities of the lesson and poem. Okay, with the appreciation, word meanings and activities which we solve during the explanation of the passages and poems. Write down the word meaning, activities, the language study, and appreciation of the poem. Okay? Write down these things in only one book. Okay? I think that you can understand me. You will have understand me what I want to say. So, please guys, do your honestly and send it in your WhatsApp group so that I can understand your feelings and your knowledge. Okay? Thank you.